हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਵੇਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਔਰ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਹਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ A ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈਗਾ A ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ, B ਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੈ 100%, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਲੈਸ ਦੈਨ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ A ਲੈਸ ਦੈਨ B, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, B ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ A ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ A ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B, ਠੀਕ ਹੈ। A ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ A ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, B ਨਾਲੋਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, A ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, B ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਅਤੇ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, C ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੀ, C ਨਾਲੋਂ। ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਬਲਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਏਗਾ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, C ਨਾਲੋਂ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B, B ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, A ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, C ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B, B ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, A ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B, B ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ C ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, A ਗ੍ਰੇਟਰ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਓ ਹੋਊਗਾ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ C, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਾਜੀ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B
B ग्रेटर दैन C, तो ये कनकलूजन की निकलूगा A ग्रेटर दैन C, ठीक है। A ग्रेटर दैन B तो है, B ग्रेटर दैन C भी है, ठीक है। तो आप A तो C के रिलेशन फाइंड आउट करना है हर की जगह पर, तो A ग्रेटर दैन C, ठीक है। थर्ड कनकलूजन की निकलूगा राजे A ग्रेटर दैन B, B ग्रेटर दैन इक्वल्स टू C, ठीक है। दैन ये की कनकलूजन निकलूगा A ग्रेटर दैन C, ठीक है जी। A ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू B, B ग्रेटर दैन इक्वल्स टू C, तो ये कनकलूजन की निकलूगा A ग्रेटर दैन इक्वल्स टू C, ठीक है। ये दोनों केसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ने, एक तो जो थर्ड केस हो गया तुहाडा, ठीक है, एक फिफ्थ केस। A ग्रेटर दैन इक्वल टू B, B इक्वल टू C, ठीक है। तो हुण इत्थे कनकलूजन की आऊगा, देखो इत्थे ग्रेटर दैन का सिंबल सी, इत्थे ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, है ना। एक सिंबल एक्सट्रा किहड़ा आ रहा सीगा ग्रेटर दैन का, तो आप इत्थे की लिया A ग्रेटर दैन C, ठीक है। इत्थे देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू है, इत्थे भी इक्वल टू है, ठीक है। तो इत्थे एक जिहड़ा ज़्यादा सिंबल एक्सट्रा सिंबल किहड़ा इक्वल टू दा, ठीक है। तो इत्थे अपना कनकलूजन की निकलूगा A ग्रेटर दैन इक्वल्स टू C, ठीक है। तो इत्थे इंडेफिनिट सिंबल किहड़ा सी अपना, ठीक है, इनू प्रायोरिटी दित्ती सी, ग्रेटर दैन नू प्रायोरिटी दित्ती सी, बट जिहड़ा A इक्वल टू है, ठीक है, इनू कोई ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। तो A की हो जाऊगा A ग्रेटर दैन भी हो सकता है, इत्थे इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। A ग्रेटर दैन इक्वल टू C, ये कनकलूजन अपना इत्थे निकलूगा, ठीक है। ये तो हो गया राजे एग्जाम्पल्स ग्रेटर दैन ते इक्वल्स टू वाले केस के, ठीक है। 5 ਜਿਹੜੇ पॉसिबल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आई होप फस्ट ਜਿਹੜੀ टाइप है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्लीयर हो गई होनी है। हाँ जी, नैक्सट जी टाइप है वो है लैस दैन के केस च A लैस दैन B इक्वल टू C, तो इत्थे की आऊगा A लैस दैन C आ जाऊगा, ठीक है। नैक्सट की है A लैस दैन B, B लैस दैन C, तो इस केस के की आ जाऊगा जी A लैस दैन C, ये कनकलूजन आऊगा, ठीक है। तो बस इत्थे थोड़ा ध्यान च रख लो, ग्रेटर दैन और लैस दैन दे की आऊगा लैस दैन द सिंबल, ओके। तो थर्ड केस की है अपने को, हाँ जी, थर्ड केस A लैस दैन B, B लैस दैन इक्वल टू C, ठीक है। तो इत्थे भी सेम होई पहला वाली कंडीशन जी आप देखी सी, तो A लैस दैन C आ जाऊगा, ठीक है। नैक्सट की है A लैस दैन इक्वल टू B, B लैस दैन इक्वल टू C, तो इत्थे भी की आऊगा राजी कनकलूजन A लैस दैन इक्वल टू C आ जाऊगा, ओके। तो फिफ्थ जो केस है A लैस दैन इक्वल टू B, B इक्वल टू C, ठीक है। तो इत्थे कनकलूजन की आऊगा राजी, देखो आप सेम पहला करके गए सी ना इत्थे, ठीक है, सेम वही चीज़ है, बट इत्थे सिंबल की है लैस दैन नाल, तो A लैस दैन C आ जाऊगा, ठीक है। आई होप A लैस दैन और इक्वल टू द केस सैकेंड जो है ये भी क्लीयर हो गया होने। 5 पॉसिबल केसेस इत्थे बनते हैं, 5 भी उपर बनी सी, ठीक है। आई होप ये तुहानूं क्लीयर हो गए होने जी सैकेंड टाइप। हाँ जी, नैक्सट देखो, ठीक है, उत्थे तो की सीगा सेम डायरैक्शन दे विच जा रहे सी सिंबल, है ना, इधर जा रहे सी, इत्थे भी इधर जा रही सी, मतलब डायरैक्शन एक ही सी ना, इधर भी सेम डायरैक्शन इधर नूं जा रहे सी सारे, इत्थे देखिए तो इधर भी डायरैक्शन सेम सी, बट इत्थे की है, इत्थे अपोजिट आ, ठीक है। जिवें A ग्रेटर दैन B, B लैस दैन C, अपोजिट सिंबल्स ने ना, इत्थे भी अपोजिट सिंबल्स ने, इत्थे भी अपोजिट सिंबल ने, इत्थे भी अपोजिट सिंबल ने, ठीक है। तो जदों राजे अपोजिट सिंबल आउण, ठीक है, तो रिलेशन जिहड़ा हैगा उहनूं आपां एस्टैबलिश नहीं कर सकते, ठीक है। A ते C दे विच कोई भी रिलेशन आपां इत्थे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस करके आपां की करते हैं, जिहड़ा कनकलूजन है, ठीक है, बिटवीन द कनकलूजन बिटवीन A एंड C विल बी इन पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उस टाइम जिहड़ा कनकलूजन है पॉसिबिलिटी दे विच चला जाता है। पॉसिबिलिटी दे विच किहड़ा केस आउंदा राजे, फिर इत्थे आइदर और दा केस आउंदा है, ठीक है। जिहड़ा आइदर और दा केस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इहदे बारे आपां डीप दे विच डिस्कशन करते हैं। याद रखियो जदों की हैगा, ठीक है, अपोजिट सिंबल्स दिते होण, अपोजिट डायरैक्शन दे विच सिंबल्स दिते होण, दैन आपां कहंदे जिहड़ा रिलेशन है उहनूं आपां एस्टैबलिश नहीं कर सकते A ते B दे विच, ठीक है। इसे करके अपने कोले पॉसिबिलिटी आउंदी आ। तो पॉसिबिलिटी दे विच की हुंदा राजी आइदर और दा जिहड़ा हैगा केस आपां इत्थे फॉलो करदे हां। तो इहनूं आपां डीप दे विच डिस्कशन करदे हां आइदर और। हाँ जी, आइदर और दे लई कंडीशनस की ने, कंडीशनस फॉर आइदर और केस, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन की है, कहते बोथ द एलीमेंट्स ऑफ द गिवन टू कनकलूजनस, 2 भी हो सकते 3 भी हो सकते, ठीक है। बोथ द एलीमेंट्स ऑफ द 2 गिवन कनकलूजन मस्ट बी सेम, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की दिता है A ग्रेटर दैन B इक्वल्स टू B इक्वल टू C, ठीक है। तो हुण इत्थे देखो, इत्थे की कहंदा A ग्रेटर दैन C,
ए ग्रेटर दैन सी, ठीक है। इत्थे कल्ला ग्रेटर का सिंबल है ही नहीं, जे कल्ला ग्रेटर का सिंबल आऊगा तो ही ए जिहड़ा है ग्रेटर आऊगा, है ना। तो ये तो फिर गलत हो गया, मतलब ये कनकलूजन की हो गया अपना, इत्थे गलत हो गया पहला। दूसरा की है ए इक्वल टू बी, ठीक है। हुण ए जिहड़ा है वो बी दे इक्वल भी नहीं है, क्योंकि इत्थे तो फिर अपने को ग्रेटर का सिंबल आ रहा, ठीक है। ये भी की हो गया, गलत हो गया। हुण देखो दोनों सिंबल ही गलत हो गए, तो इत्थे आइदर और का केस आऊगा, मीनस पॉसीबिलिटी बनूगी। पॉसीबिलिटी की बनती है देखो राजे, या तो फिर इस केस दे विच देखिए ना, या तो ये ग्रेटर हो सकता है ए, या फिर की हो सकता है राजे इक्वल हो सकता है, ठीक है। या की हो सकता है ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इत्थे की हो सकता है इक्वल हो सकता है ना, ठीक है। तो आपां नूं इत्थे रिलेशन तो पता ही नहीं है, तो फिर इत्थे की होऊगा राजे, या तो फिर ये ग्रेटर हो जाऊगा, दो सिंबल आ गए ना, या तो हुण देखो लैस दैन दा सिंबल तो है ही नहीं इत्थे, ठीक है। या तो फिर यही की हो जाऊगा ग्रेटर हो जाऊगा, या फिर की हो जाऊगा इक्वल हो जाऊगा। मतलब एक चीज़ तो ट्रू होगी ना, जे दोनों गलत ने, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ तो पॉसीबिलिटी दे विच जाऊगी, ठीक है। तो पॉसीबिलिटी दे विच की है, ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर उत्थे आपां की लगावांगे, जिहड़ा कनकलूजन है अपना आइदर और दा फॉलो होऊगा। आई होप ये पहली एग्जाम्पल तुहानूं आइदर और दी क्लीयर हो गई होनी है। सैकेंड केस की है बोथ द कनकलूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, ठीक है। जे दोनों ही गलत ने इंडिविजुअली, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन ये एग्जाम्पल आप नीचे करांगे। थर्ड कनकलूजन की थर्ड जी कंडीशन की हैगी है, कहते कलैक्टिवली बोथ द जो भी कनकलूजन दिते हुए तुहानूं, ठीक है, कलैक्टिवली बोथ द कनकलूजन शुड सैटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की कहने देखो, आप एग्जाम्पल ये ली ए ग्रेटर दैन बी, बी लैस दैन सी, ठीक है। तो हम दोनों जिहड़ियां हैगियां आपां स्टेटमेंट्स जिहड़ियां कंडीशन हैगियां उन्होंने देखते हैं, ठीक है। तो पहला की है देखो, ठीक है, ए ग्रेटर दैन सी, ए लैस दैन सी, ए इक्वल टू सी, ठीक है। तो हुण इत्थे देखो जिहड़ा ए हैगा, ठीक है, वो की कह रहा भाई, कहना ग्रेटर दैन सी, बट सिंबल अपोजिट आ गए, ठीक है। तो ए की हो जाऊगा गलत। फिर कहना ए जिहड़ा हैगा, ठीक है, वो की हो सकता है, इत्थे तुहानूं कहता बी लैस दैन सी, है ना, इत्थे भी नहीं आपां नूं पता हैगा, ये भी आपां गलत करता। फिर इक्वल टू तो सिंबल ही नहीं दिता, ये भी आपां गलत करता, ठीक है। तो हुण तीनों कनकलूजन ही गलत करते, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बट जे आपां पॉसीबिलिटी की गल करिए, पॉसीबिलिटी दे विच या तो हुण ए ग्रेटर होऊगा, या फिर ए लैस होऊगा, या फिर ए इक्वल होऊगा, यही तीन केस बनते ना। तीसरा इदों बाद कोई होर केस ही नहीं बनता, ठीक है। अगर यही तीन सिंबल होंगे कंपेरिजन करने वास्ते, या तो इक्वल हो सकता है, या फिर कह लो भी स्मॉलर हो सकता है, या फिर कह लो भी ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। तो इत्थे ग्रेटर है, इत्थे स्मॉलर है, इत्थे इक्वल है, आ जिहड़े तुहानूं वेरीएबल दित्ते ये सेम है, ठीक है। तो इत्थे पॉसीबिलिटी दे विच तुसीं की लगाओगे, आइदर और दा केस लगाओगे, ठीक है। जिवें आपां इत्थे लिखा होया देखो और बाकी है ना, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, ए लैस दैन सी, ठीक है। आइदर और टू दे विच लगदा हुंदा ना, ठीक है। तो इत्थे टू अपने कोल स्टेटमेंट्स बन गई, ए की है लैस दैन सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, या फिर ए लैस दैन सी, ठीक है। तो हुण इत्थे तो कोई भी नहीं है, तो ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो यह गलत आ, ठीक है, दोनों ही गलत नहीं गे। बट इत्थे फिर पॉसीबिलिटी आ गई, पॉसीबिलिटी दे विच तीनों सिंबल्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जे दोनों सेम वेरीएबल ने और उन्होंने तुसीं कंपैरिजन कर रहे हो, तो पॉसीबिलिटी तां ही संभव है जे तीनों सिंबल हैगे आ। देखो इत्थे ग्रेटर भी है, इत्थे इक्वल भी है, इत्थे लैस दैन भी है, तो फिर इत्थे आपां की लगावांगे राजे आइदर और, ठीक है। सेम चीज़ इत्थे है, ठीक है। इत्थे यह ग्रेटर सीगा, इक्वल टू नाल लग्या होया सी, इत्थे की है स्मॉलर दैन इक्वल टू है, ठीक है। तो ए स्मॉलर दैन इक्वल टू सी, या फिर ए ग्रेटर दैन सी, ठीक है। तो इत्थे भी पॉसीबिलिटी ही बनेगी। पॉसीबिलिटी क्यों बनेगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए की ने गलत ने, ठीक है। पहले इत्थे भी क्रॉस ला दिए, ए भी गलत सी, ठीक है। तो ए भी की ने गे राजे गलत ने। बट हुण जदों गलत ने, ठीक है, जदों दोनों ही रॉन्ग ने, इत्थे करके सी ना मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, है ना, ठीक है। तो इत्थे गलत नहीं, तो इत्थे आपां की करांगे पॉसीबिलिटी लगावांगे। पॉसीबिलिटी दे विच तीनों सिंबल्स का होना जरूरी है, किहड़े लैस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन। तो इत्थे भाई लैस भी है, इत्थे भाई लैस दैन भी है, इत्थे भाई इक्वल टू भी है, तो इत्थे ग्रेटर दैन भी है, ठीक है। तो इस केस दे विच जिहड़ा तुहाडा आंसर की आऊगा राजे तीनों केसिस दे विच, ठीक है। और चौथी ये एग्जाम्पल कीती सी, इत्थे की आऊगा राजे तुहाडा जिहड़ा आंसर है आइदर और, ठीक है। आई होप ये तुहानूं क्लीयर हो गया होना, ठीक है जी।
हाँ जी, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਈਦਰ ਔਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਈਦਰ ਔਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।